Hello bachcho, how are you all? I hope you all are fine. So today's topic is money. Learning objectives. To do conversion of rupees and paise, to do basic operations using money, to solve word problems on money. Now tune up. Ravi goes to a stationery shop. If he has rupees 150, what combination of things can be buy with that amount of money? Book 100 rupees, stapler pins 10 rupees, crayons 40 rupees, sketch pen 30 rupees, pencil box 50 rupees, पेन 20 रुपीज़. तो इन आइटम्स में से आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाएंगे कि 150 रुपीज़ के थ्रू आप क्या क्या परचेज कर सकते हैं. तो ये एक्टिविटी आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज लेट्स स्टार्ट. इन इंडिया मनी इज स्प्लिट अप इनटू रुपीज़ एंड पैसे. Look at some of the coins and notes. 50 paise, rupee 1, rupees 2, rupees 5, rupees 10 and rupees 20 coins. Now notes, rupee 1, rupees 2, rupees 5, rupees 10, rupees 20, rupees 50, rupees 100, rupees 200, rupees 500. Some of these coins are no longer in use. But it may interest you to know that we used to have coins of 1 paisa, 2 paisa, 3 paise, 5 paise, 10 paise and 20 paise in India. We have both currency notes and coins for rupees 1, rupees 2, rupees 5, rupees 10 and rupees 20. Rupees RS and this symbol are used to represent the word. Writing of rupees and paise. In our day-to-day life, we need to express an amount in terms of rupees and paise. For example, Sapna has a 10 rupees note and a 50 paise coin. In word, we express this amount as rupees 10 and paise 50. In figures, we write as rupees 10.50. The dot or small point called decimal separates rupees from paise. The numeral indicating rupees is written before the decimal and the numeral of paise is written after the decimal. Like 2 rupees and 50 paise. This is read as 2 rupees 50 paise and written as rupees 2.50. Now 10 rupees, 5 rupees and 50 paise. This is read as 15 rupees 50 paise and written as rupees 50.50. Now facts. Start counting the money from the biggest amount. हमेशा biggest amount से हम start करेंगे. If there is no paise, then 2 zeros are written in the place of paise. For example, 20 rupees, that is equals to rupees 0.00. 0 on the left of the dot means that there is no rupee. For example, 50 paise, that is equals to rupees 0.50. That means no rupees, only paise. Now practice time 11.1. Question number 1. Write the following amounts in symbolic form in figures. A part 50 paise. 50 पैसे को आप कैसे लिखेंगे? रुपीज 0.50 इस तरह से. तो बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे सेम मेथड को यूज करते हुए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन वर्ड्स. ए पार्ट रुपीज 00.25. दैट मीन्स 25 पैसे. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. गिवन बिलो आर सम अमाउंट्स इन वर्ड्स, एक्सप्रेस देम इन फिगर्स. ए पार्ट करते हैं. रुपीज 45 एंड पैसे 55. रुपीज 45 पॉइंट पैसे 55.55. तो सेम मेथड का यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ रुपीज एंड पैसे. We know that a rupee is made of 100 paise. That means 1 rupee is equals to 100 paise.
First, to convert rupees into paise, we multiply the number of rupees by 100 or simply we remove the dot. For example, rupees 5, that is equals to 5 multiplied by 100 paise is equals to 500 paise. Rupees 9.15, that is equals to rupees 9 and 15 paise. तो 9 rupees is equals to 900 paise plus 15 पैसे इज इक्वल्स टू 915 पैसे. तो डायरेक्ट अगर आप डॉट भी हटा दोगे तो इट बिकम्स 915 पैसे. नाउ नेक्स्ट, टू कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीज और इनटू रुपीज एंड पैसे वी सिंपली स्टार्ट फ्रॉम द राइट एंड काउंट 2 डिजिट्स टू द लेफ्ट एंड देन पुट द पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल 485 पैसे. तो 485 को 400 पैसे प्लस 85 पैसे, 400 पैसे मीन्स 4 रुपीज एंड 85 पैसे, दैट इज इक्वल्स टू रुपीज 4.85. या फिर आप डायरेक्ट क्या करेंगे, राइट साइड से 2 डिजिट को काउंट करेंगे और उसके बाद डॉट लगा देंगे, दैट बिकम्स रुपीज 4.85. 1050 पैसे, 1050 पैसे, तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डॉट लगाएंगे, दैट इज रुपीज 10.50. नाउ प्रैक्टिस टाइम 11.2. Question number 1. Convert each into paise. A part, rupees 10. Rupees 10 is equals to 10 multiplied by 100 paise, that is equals to 1000 paise. तो सेम मेथड का यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. कन्वर्ट इनटू रुपीज एंड पैसे. ए पार्ट करेंगे इसका. 304 पैसे, 304 पैसे, 300 पैसे प्लस 4 पैसे, 300 पैसे बिकम्स रुपीज 3 प्लस 4 पैसे, तो रुपीज 3.04. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज अवॉइडिंग सिली मिस्टेक्स. 5 पैसे इज इक्वल्स टू रुपीज 0.5. 8 पैसे इज इक्वल्स टू रुपीज 0.8, बट इट इज अ रॉन्ग. हमें क्या लगाना है, पैसे में 2 डिजिट, तो रुपीज 0.05, रुपीज 0.08. नाउ नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन रुपीज एंड पैसे. मनी एडिशन. फर्स्ट, एडिशन विद कन्वर्जन. एग्जाम्पल 1, एड रुपीज 25.25 एंड रुपीज 5.05. सॉल्यूशन करते हैं इसका. रुपीज 25.25 इज इक्वल्स टू 25 पैसे एंड रुपीज 5.05 इज इक्वल्स टू 505 पैसे. नाउ ऐड किया दोनों को, दैट इज 3030 पैसे. 3030 पैसे इज इक्वल्स टू लास्ट राइट साइड से 2 डिजिट के बाद आप क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे. तो 30 के बाद डॉट लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा रुपीज 30 एंड 30 पैसे और रुपीज 30.30. To add rupees and paise, first we convert rupees and paise into paise and then add the number of paise like ordinary numbers and lastly convert these paise into rupees and paise. Now adding without conversion. Example 2, add rupees 53.45 and rupees 71.39. Solution करते हैं. In adding the money by this method, write the rupees and paise in separate columns. Rupees and paise लिखेंगे, then add like ordinary numbers. तो 53 rupees 45 पैसे plus 71 rupees 39 पैसे. तो add किया हमने, that is 124 rupees and 85 पैसे. Rupees 124 and 84 पैसे और rupees 125.84. Now facts. Paise should always be written in 2 figures. For example, 5 paise should be written as 0.5 paise. Now, money subtraction. Subtraction can also be carried out in the same way as we did in case of ordinary numbers, but under P column, paise should be written always in 2 figures. Now, example 3. Subtract rupees 25.10 from रुपीज 34.75. सॉल्यूशन करते हैं इसका. रुपीज और पैसे का कॉलम बनाया, 34 रुपीज 75 पैसे माइनस 25 रुपीज 10 पैसे. सब्ट्रैक्ट किया लाइक ऑर्डिनरी नंबर 9.65, दैट मीन्स रुपीज 9 एंड 65 पैसा और रुपीज 9.65. नाउ एग्जाम्पल 4. सब्ट्रैक्ट 32.60 फ्रॉम 47.15.
सॉल्यूशन करते हैं। अगेन रुपीज़ और पैसे का कॉलम बनाएंगे। 47 रुपीज़ 15 पैसा माइनस 32 रुपीज़ 60 पैसा, माइनस करेंगे एड जैसे ऑर्डिनरी नंबर्स को करते हैं। सो आंसर इज रुपीज़ 14 एंड 55 पैसा और रुपीज़ 14.55। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रुपीज़ एंड पैसे बाय अ 1 डिजिट नंबर। एग्जाम्पल 5, मल्टीप्लाई रुपीज़ 13.50 बाय 3। सॉल्यूशन करते हैं इसका। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी इज डन इन द सेम वे एज multiplication of ordinary numbers but we put a dot leaving 2 digits from the right। रुपीज़ और पैसे में लिखेंगे 13 रुपीज़ 50 पैसा मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, 3 5 15 कैरी 1, 3 3 9 प्लस 1 10 0 1 कैरी 3 1 3 प्लस 4। सो रुपीज़ 40 एंड 50 पैसा और रुपीज़ 40.50। नाउ प्रैक्टिस टाइम 11.3। एड क्वेश्चन नंबर 1 ऐड करेंगे, पैसे से स्टार्ट करेंगे। 8 प्लस 5 इज 13, 3 1 कैरी करेंगे। 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 9 इज 10, 10 में 0 1 कैरी करेंगे रुपीज़ पे। 6 प्लस 1 इज 7, 7 प्लस 9 इज 16, 6 1 कैरी करेंगे। 1 प्लस 0 प्लस 8, 8 प्लस 1 इज 9 एंड 3 प्लस 3 इज 6, 696 रुपीज़ एंड 3 पैसा। तो सेम मेथड को यूज़ करते हुए बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन नंबर 10। रुपीज़ और पैसे में ऑलरेडी एडजस्टेड है, माइनस करते हैं। 0 माइनस 0 इज 0, 5 माइनस 6 नॉट पॉसिबल, वी हैव टू बोरो फ्रॉम रुपीज़। तो 100 रुपीज़ बिकम्स 99 रुपीज़ एंड 5 पैसा बिकम्स 15। 15 माइनस 6 इज 9, नाउ 9 माइनस 5 इज 4, 9 माइनस 7 इज 2, सो रुपीज़ 24.90। तो सेम मेथड को यूज़ करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई क्वेश्चन नंबर 19। मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 जा 16, 6 1 कैरी, 2 5 जा 10 प्लस 1 इज 11, 1 1 कैरी, 2 3 जा 6 प्लस 1 इज 7, 2 4 जा 8, 87 रुपीज़ 16 पैसा। तो सेम मेथड को यूज़ करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज वर्ड प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल 1, Manish got rupees 45.80 from his father, rupees 40.75 from his uncle and rupees 46.00 from his aunt. How much money did he get in all? कि उसको कुल कितना पैसा मिला। तो तीनों से जितना पैसा मिला तीनों को ऐड कर देते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। मनी ही गॉट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 45.80 प्लस रुपीज़ 40.75 प्लस रुपीज़ 46.00। तीनों को हमने कॉलम्स में अरेंज किया, ऐड किया, दैट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 132.55। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, नेहा परचेज्ड 1 बुक फॉर रुपीज़ 42.25। शी गेव शॉपकीपर अ रुपीज़ 200 नोट। हाउ मच मनी डिड शी गेट बैक? उसने 200 का नोट दिया और 42 रुपीज़ 25 पैसे की क्या थी, बुक थी, तो उसको कितना पैसा मिला? तो 200 में से बुक के प्राइस को माइनस कर देंगे। देखते हैं सॉल्यूशन। अमाउंट शी गॉट बैक रुपीज़ 200 माइनस रुपीज़ 42.35। कॉलम्स में अरेंज किया और माइनस किया, दैट इज इक्वल्स टू 157.75। तो रुपीज़ 157.75। नाउ एग्जाम्पल 3, द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ शूज इज रुपीज़ 95.95। वट इज द कॉस्ट ऑफ 9 सच पेयर्स? एक पेयर की कॉस्ट गिवन है, 9 की क्या होगी ज़्यादा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ शूज इज इक्वल्स टू रुपीज़ 95.95। कॉस्ट ऑफ 9 पेयर्स ऑफ शूज इज इक्वल्स टू रुपीज़ 95.95 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 से इसको मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 863.55। नाउ नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम 11.4। क्वेश्चन नंबर 1, Rahul bought a shirt for rupees 125.25 and trousers for rupees 275.50. How much money did he spend all together? उसने कुल कितना खर्च किया? तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा शर्ट कितने का है, शर्ट हमारा है 125 रुपीज़ एंड 25 पैसा एंड ट्राउज़र कितने का है, इज इक्वल्स टू 275 रुपीज़ एंड 50 पैसा। तो कुल कितना पैसा खर्च किया उसने, प्लस कर देंगे 5
2 + 5 is 7, 5 + 5 is 10, 0, 1 carry. 7 + 2 is 9, 9 + 1 is 10, 0, 1 carry. 2 + 1 + 1 is 4. That is rupees 475 पैसा. सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चन आपको ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज मेकिंग बिल्स. Whenever we buy something from a shop, the shopkeeper gives us a bill of items bought from shop. A bill tells us what and how much of the quantity we bought. Now, example 1. Seema bought a packet of sugar for rupees 34, flour for rupees 18.50 and candles for rupees 11.50. Make a bill for her purchases. How much change will she get back if she gives a 100 rupees note to the shopkeeper? सॉल्यूशन करते हैं इसका. बिल, सीरियल नंबर लिखेंगे, कितने हमने आइटम्स लिए, क्या आइटम्स लिए, ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे, कितनी क्वांटिटी और उसका अमाउंट रुपीज़ और पैसे में. नंबर 1 पे लिखा है शुगर 1 पैकेट 34 रुपीज़. नंबर 2 पे लिखा हमने फ्लोर 1 पैकेट 18 रुपीज़ 50 पैसा. नंबर 3 पे लिखा कैंडल्स 1 पैकेट 11 रुपीज़ 50 पैसा. टोटल कितना हुआ, सबको हमने क्या कर लिया, यहाँ पे प्लस कर लिया. इनको प्लस करने के बाद आया 64 रुपीज़. उसने 100 रुपीज़ का नोट दिया तो उसे कितना पैसा वापस मिला, तो 100 रुपीज़ में से हम 64 रुपीज़ को माइनस करेंगे. नाउ शी गेव रुपीज़ 100, टोटल कॉस्ट 64 रुपीज़, माइनस कर देंगे तो बैलेंस कितना है 36 रुपीज़. So she will get back rupees 36. Now example 2. A pen is for rupees 7 and a pencil for rupees 5. What is the total money Shalu has to pay if she buys 10 pens and 5 pencils? Solution करते हैं. अब पेन है 7 रुपीज़ का और पेंसिल है 5 रुपीज़ की. उसने 10 पेन्स लिए तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 7 रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स कितनी हो जाएगी, 10 × 7 इज इक्वल्स टू ₹70. नाउ कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज इक्वल्स टू 5 रुपीज़ और उसने कितनी पेंसिल्स ली 5, तो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स इज इक्वल्स टू 5 × 5 इज इक्वल्स टू ₹25. तो बिल बनाएंगे यहाँ पे, सीरियल नंबर, ऑब्जेक्ट, क्वांटिटी और टोटल प्राइस रुपीज़ और पैसे में. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पेन कितनी क्वांटिटी ली 10 और प्राइस कितना था एक पेन का 7 रुपीज़, तो 10 का कितना हो गया 70 रुपीज़. पेंसिल कितनी ली 5, एक पेंसिल कितने की थी 5 रुपीज़ की, तो टोटल कितने की होगी 25, तो ग्रैंड टोटल कितना हो गया 95 रुपीज़. सो शालू हैज़ टू पे रुपीज़ 95. नाउ प्रैक्टिस टाइम 11.5. क्वेश्चन नंबर 1. कंप्लीट द फॉलोइंग बिल्स एंड फाइंड द टोटल अमाउंट. ए पार्ट, सीरियल नंबर गिवन है, ऑब्जेक्ट्स, क्वांटिटी और प्राइस. मैथ्स बुक है, 3 क्वांटिटी है और एक का प्राइस है 85 रुपीज़, तो 3 का कितना होगा 3 × 85. 3 5 ज़ा 15, 15 1, 3 8 ज़ा 24 + 1 25. तो ये हमारा हो गया ₹25 पैसे. नेक्स्ट है साइंस बुक, 2 क्वांटिटी खरीदी है, 72 रुपीज़ की एक है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 144 रुपीज़ 00 पैसा. जीके बुक 3 खरीदी है, 54 रुपीज़ की एक है, तो 3 × 54, 3 4 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15 + 1 इज 16, 162 रुपीज़ 00 पैसे. इंग्लिश बुक 2 खरीदी है, एक 67 की है, तो 2 7 ज़ा 14, 4 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 + 1 13, 134 रुपीज़ 00. एंड ग्रामर बुक कितनी है 1, दैट इज़ 48 रुपीज़. तो ग्रैंड टोटल कितना हो गया, इन सबको हम टोटल कर देंगे, 255 + 144 + 162 + 134 एंड 48 रुपीज़. तो 5 + 4 इज़ 9, 9 + 2 इज़ 11, 11 + 4 इज़ 15, 15 + 8 इज़ 23. 3 हम लिखेंगे, 2 कैरी, 2 + 5 इज़ 7, 7 + 4 इज़ 11, 11 + 6 इज़ 17, 17 + 3 इज़ 20, 20 + 4 इज़ 24, 4 2 कैरी, 2 + 2 इज़ 4, 5 6 7, 743 रुपीज़ एंड 00 पैसा. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज पजल बैग. डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट. हमें OMR शीट गिवन है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, करेक्ट आंसर फाइंड आउट करेंगे और OMR शीट में फिल करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
₹8.25 इज सेम एज ₹8.25। तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो डी पे हम डार्क करेंगे। तो सेम मेथड का यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करेंगे और OMR शीट में फिल करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज क्रैक द कोड। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट इनटू पैसे ₹18। ए पार्ट करेंगे 18 रुपीज, दैट इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 1800 पैसे। तो सेम मेथड से आप बाकी के पार्ट्स खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इनटू रुपीज एंड पैसे। ए पार्ट करेंगे 735 पैसे। तो रुपीज राइट साइड से 2 डिजिट के बाद हम डॉट लगा देंगे, तो 7.35। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ऐड रुपीज। तो रुपीज और पैसे हम लिखेंगे 63 रुपीज 86 पैसा, 36 रुपीज 56 पैसा एंड 96 रुपीज 00 पैसा। ऐड करेंगे 6 + 6 इज 12, 2 1 कैरी, 8 + 1 इज 9, 9 + 5 इज 14, 4 1 कैरी, 3 + 1 इज 4, 4 + 6 इज 10, 10 + 6 is 16, 6 1 carry, 6 + 1 is 7, 7 + 3 is 10, 10 + 9 is 19, that is equals to rupees 196.42. नाउ नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट। तो सेम मेथड को यूज करते हुए पहले हम क्या करेंगे, रुपीज और पैसे का कॉलम बनाएंगे और 25 रुपीज 15 पैसे में से 13 रुपीज 6 पैसे को माइनस करेंगे। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज मेंटल मैथ्स। हाउ मेनी 50 पैसे कॉइन्स आर नीडेड टू मेक रुपीज 12.50। 1 रुपीज में कितना होता है, 2 50 पैसे के कॉइन होते हैं, तो 12 रुपीज में कितने होंगे, 12 2 24 कॉइन्स प्लस 50 पैसे में 1 मोर कॉइन, तो 25 कॉइन्स। हमें 50 पैसे के 25 कॉइन्स चाहिए टू मेक रुपीज 12.50। नाउ नेक्स्ट होट्स। साधना गेट्स पेड रुपीज 256 per hour for working in an office. On Saturday she works from 10 AM to 1 PM. How much does she make on Saturday? उसको 1 घंटे के 256 रुपीज़ मिलते हैं और सैटरडे को उसने 10 बजे से लेके 1 बजे तक का काम किया। तो आप इसमें खुद देखेंगे उसको टोटल उस दिन कितना पैसा मिला। तो ये एक्टिविटी आप खुद परफॉर्म करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज लाइफ स्किल्स। रीमा गेट्स रुपीज 200 एज पॉकेट मनी एवरी वीक. शी गिव्स रुपीज 50 फ्रॉम इट एवरी वीक in the donation fund collection that takes place every Friday in her school. 200 रुपीज़ उसे पॉकेट मनी मिलती है और 50 रुपीज़ वो वीकली किस में देती है, डोनेशन में। तो हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद रीमा इन ए वीक टू स्पेंड। तो कितना पैसा बचता है, 200 में से 50 रुपीज़ वो दे देती है तो उसके पास 150 रुपीज़ बचता है। नाउ नेक्स्ट इज डोनेटिंग मनी फॉर अ गुड कॉज इज अ गुड हैबिट. डू यू डोनेट मनी टू द नीडी? करते हैं आप डोनेट? तो आप आंसर देंगे येस और नो में। Now next is math lab activity. Objective: to learn how to handle money. Materials required: paper cutouts to be used as notes, cardboard cutouts to be used as coins. Procedure: give each child a stack of paper cutouts and a bunch of cardboard cutouts. They will stick the right amount of notes and coins to add up to the total. One row has been filled for you. यहाँ पे हमने कितने रुपीज़, यहाँ पे हमारा कितना है, यहाँ पे हमारा 100 रुपीज़ का नोट है, देन 50, देन 20, 10 और 5 है, 1 है, 1 है। 28 रुपीज़ को बनाने के लिए हमने 20 रुपीज़ लिया, 5 रुपीज़ लिया, 20 + 5 25, 26, 27 एंड 28 रुपीज़ हो गया। अब 96 रुपीज़ बनाने के लिए आपको कौन कौन से नोट चाहिए, तो ये एक्टिविटी आप अपनी क्लास टीचर के साथ अपनी क्लास में परफॉर्म करेंगे और टेबल को फिल करेंगे। तो बच्चों आई होप आपको चैप्टर समझ आया, इसके रिवीजन आप खुद कीजिए।